Hello students, myself Professor Ashok M. Jain. In this lecture, I am going to discuss about three-phase transformer connections. In the last lecture, I had discussed how to construct the three-phase transformer, what are the advantages of three-phase transformer over the bank of three single-phase transformer, and disadvantages also I had discussed. Here we are going to discuss the three-phase transformer connection. I told you already we have a three-phase transformer, means we have a three windings. These three windings are placed on three limbs. These three limbs are displaced at an angle of 120 degree. Okay, and three windings will be have low voltage winding and high voltage windings. So these windings you can connect in star-star form fashion, means primary or low voltage winding in star, high voltage winding are also in star, or high voltage winding in star, low voltage winding will be also in star. Both windings will be star-star connection. Second is the delta-delta, primary and secondary both in delta and delta form. Yeah, low voltage winding in delta, high voltage winding will also be in delta. Star-delta, delta-star, clear? Open delta or VV connection. We will discuss this point also. And the last one is the Scott connection. Okay, so these two are special connections we will discuss. So these are the 6 connections we are going to discuss. Okay, so before discussing this different types of connection, okay, I am interested to discuss the factors affecting the choice of connection. कौन सा type का connection लेना है? What are the factors which will affect the types of connection, right? So this is, you must know it. Okay, so what are the factors which will affect the choice of connection? So first, neutral connection for grounding, protection or load connection. For example, suppose करो कि हमने एक ट्रांसफार्मर चाहिए एंड वो क्लियर, और आपको चाहिए एक फेज एंड न्यूट्रल. आप घर में आपको क्या लगता है, सिंगल फेज सप्लाई लगेगी तो एक फेज और एक न्यूट्रल लगेगा. क्लियर? तो ये सिंगल फेज सप्लाई आपके घर में जो आ रही है वो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से नहीं आ रही. यू आर गेटिंग दिस सप्लाई फ्रॉम थ्री फेज ट्रांसफार्मर. और थ्री फेज ट्रांसफार्मर कैसा रहेगा? लाइक दिस and this is called as neutral. Clear? So you are getting 4 wires, 3 phase 4 wire system. It is called as R phase, Y phase, B phase. These are the 3 phases and 1 neutral. So from this 3 phase 4 wire system you are getting phase and neutral, right ना? So इसका मतलब है सिलेक्शन क्या पे डिपेंड करेगा? अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रल कनेक्शन फॉर लोड. आपको यहाँ पर सिंगल फेज चाहिए तो न्यूट्रल चाहिए तो क्या चाहिए आपको? स्टार कनेक्शन ही लगेगा. क्लियर? दूसरा, समटाइम्स यू वांट प्रोटेक्शन आल्सो, ग्राउंड प्रोटेक्शन, राइट ना? सो the choice depends on what? Availability of neutral connection for grounding, protection or लोड कनेक्शन. आपको ग्राउंड करना है ट्रांसफार्मर की न्यूट्रल को, तो इसके लिए स्टार चाहिए. सो लाइक दैट. सेकंड, सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन व्हाट? इंसुलेशन टू ग्राउंड एंड वोल्टेज स्ट्रेस. सपोज करो कि आपने डेल्टा कनेक्शन यूज कर लिया, राइट? तो इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन, VL इक्वल टू व्हाट? V फेज इक्वल टू व्हाट? PL. सपोज करो कि ये आपका 220 kV है, किलो वोल्ट, 220 किलो वोल्ट. VL और V फेज विल बी सेम. लेकिन अगर आपने स्टार यूज किया होता, सो VL तो 220 है, V फेज कितना होता? V फेज इक्वल टू व्हाट? VL बाई √3, मतलब 220 kV डिवाइडेड बाई √3. सो ये वोल्टेज, फेज वोल्टेज कम हो जाता, और फेज वोल्टेज कम हो जाता तो वोल्टेज स्ट्रेस
या insulation required will also be reduced. That is the advantage. Okay, so insulation to ground and voltage stress, it depends on. Third factor will be affected. This is the third factor, it will affect the connection, that is the availability of path to the flow of third harmonics and zero sequence current. ओके अगर आपको थर्ड हार्मोनिक्स हैं उसको डाइवर्ट करने के लिए इट डिपेंड्स डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्शन वी आर गोइंग टू यूज. फोर्थ पॉइंट, नीड फॉर पार्शियल कैपेसिटी एंड रिमूव वन फेज फ्रॉम द सर्विस. आपको आई टोल्ड यू ऑलरेडी, दिस इज द डेल्टा डेल्टा कनेक्शन वी हैव. क्लियर? और एक ट्रांसफार्मर फेल हो जाता है दिस, तो आप चाहो तो यू कैन सप्लाई विद द हेल्प ऑफ ओनली ओपन डेल्टा और वीवी कनेक्शन एट रिड्यूस्ड पावर लेवल, बट यू कैन सप्लाई द पावर, या आपको कुछ मेंटेनेंस करना है. सो नीड फॉर पार्शियल कैपेसिटी एंड रिमूव वन फेज फ्रॉम स्विच. ओके, सो यहां पर हम डेल्टा डेल्टा यूज कर लेंगे. राइट. नेक्स्ट, ऑपरेशन अंडर फॉल्टी कंडीशन भी आपको कंटिन्यू करना है. विद द हेल्प ऑफ ओपन डेल्टा यू कैन कंटिन्यू द सप्लाई. सो दिस इज द ऑपरेशन अंडर फॉल्टी कंडीशन. इट डिपेंड्स कौन सा टाइप का यूज करना है. स्टार होता तो आप कर ही नहीं सकते थे. क्लियर ना? एंड द लास्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक कंसिडरेशंस. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एज पर द इकोनॉमिक कंसिडरेशंस वी विल, दिस फैक्टर विल अफेक्ट द चॉइस ऑफ कनेक्शंस. क्लियर? दैट इज द इकोनॉमिक कनेक्शन. कौन सा कनेक्शन ज्यादा इकोनॉमिक रहेगा. सो दीज आर द 5-6 पॉइंट्स आर देयर. दीज points will affect the choice of connections. So I am going to discuss all these types of connections. Clear? Star star, delta delta, star delta, delta star. But before that, different types of connection, I am going to discuss about phasor group. That is very very important part, because अगर आपको parallel operation पे जाना है, we'll discuss in one more presentation on parallel operation. तो parallel operation में ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप का ट्रांसफार्मर है दूसरे ग्रुप को उसके पैरेलल में लगा दें. ग्रुप मस्ट बी सेम. ग्रुप 1 है तो दूसरा भी ग्रुप 1 का ही चाहिए पैरेलल में. पहला अगर ग्रुप 2 का है तो दूसरा ट्रांसफार्मर अगर उसके पैरेलल में आप कनेक्ट कर रहे हैं तो इट शुड बी अ ग्रुप 2, सेम ग्रुप. दैट इज द कंडीशंस वी हैव. ओके, सो विल डिस्कस the transformer phasor group. Okay, so here I am going to discussing, this is the transformer phasor groups. Okay, so you can see here we can divide the transformer in 4 groups. Group number 1, group number 2, group number 3 and group number 4. डिफरेंस क्या होता है? अच्छा हाँ, ये सब कुछ पहले कहने के पहले मैं आपको बता दूं, जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है और लो वोल्टेज वाइंडिंग, दो साइड रहती है ना, एक हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज. प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है वो भूल जाओ आप, हमको कोई मतलब नहीं है प्राइमरी एंड सेकेंडरी से. क्लियर? अगर हाई वोल्टेज वाइंडिंग प्राइमरी में कनेक्टेड है तो लो वोल्टेज वाइंडिंग सेकेंडरी से कनेक्ट रहेगी, स्टेप डाउन हो जाएगा. उल्टा है तो स्टेप अप हो जाएगा. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, आई एम इंटरेस्टेड इन हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग. ऑलवेज हाई वोल्टेज वाइंडिंग विल बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर. Clear? And low voltage winding will be represented by lower case letter. प्लीज याद रखना. आप चाहो तो यहां देख सकते हो YY0, इसका मतलब क्या है? प्राइम हाई वोल्टेज वाइंडिंग क्या है? स्टार कनेक्टेड. Y स्मॉल y मतलब क्या है? लो वोल्टेज वाइंडिंग क्या है? स्टार. इसका मतलब ये जो कनेक्शन है ये वाला YY0, इसको बोलते हैं, ये Y मतलब हाई वोल्टेज वाइंडिंग कनेक्शन स्टार में, स्टार स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर है. एंड 0 मतलब इनका जो लाइन वोल्टेज है दोनों का, इसका और इसका लाइन वोल्टेज का फेज डिफरेंस क्या है? 0. क्लियर? इसको बोलते हैं YY0. या DD0 मतलब ये क्या है? हाई वोल्टेज वाइंडिंग कैपिटल D, ये क्या है? लो वोल्टेज वाइंडिंग स्मॉल d. और 0 मतलब दोनों का फेज डिफरेंस क्या है? 0. क्लियर? सो दिस इज व्हाट. ओके, नेक्स्ट स्लाइड में दिया है, तो ये मैं ऐसा लिखता हूं,
ये है A1 कैपिटल लेटर, ये है B1 कैपिटल लेटर है, C1। आप चाहो तो R/B लिख सकते हो प्राइमरी साइड का। ये क्या है? हाई वोल्टेज साइड का। लो वोल्टेज साइड का कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा, ऐसा। ये A1 स्मॉल लेटर, ये B1 और ये C1। अब आप देखेंगे दोनों का फेज डिफरेंस क्या है? 0 डिग्री। सो YY 0 या DD 0, राइट। Z0 जो है ना, थर्ड पार्ट, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस, दैट इज द zigzag कनेक्शन। Z फॉर zigzag, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस, आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस टू ओनली। नाउ ये ग्रुप 2 में क्या होता है? ये होता है फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री। फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री मतलब ये ऐसा है, Y A1 ये B1 और ये C1, सॉरी ये कैपिटल B1 और C1। ये आपका क्या हो गया? प्राइमरी। स्टार है, सेकेंडरी भी स्टार है, बट 6 का मतलब है 6। अच्छा, एक 30 डिग्री का फेज डिफरेंस आता है, तो 0 मतलब 0 इंटू 30 क्या आया? 0 डिग्री। क्लियर? 6 का मतलब है 6 इंटू 30 कितना आएगा? 180 डिग्री का फेज डिफरेंस। आर यू गेटिंग इट? 6 इंटू 30, सो 180। ये A1 है यहाँ, तो इसका A1 कहाँ आएगा? ऐसा A1। B1 यहाँ है तो 180 डिग्री से B1 यहाँ आएगा। C1 यहाँ है तो 180 डिग्री C1 यहाँ आएगा। क्लियर ना? दिस इज ग्रुप 2, 180 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट। इसको बोलते हैं YY6। 6 से आता है, 6 मतलब 6 इंटू 30 मीन्स 180 डिग्री। फेज डिफरेंस विल बी 180 डिग्री। क्लियर? क्लियर ना? और ये क्या होता है? ग्रुप 3 में क्या होता है? 30 डिग्री लैग फेज डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये अभी यहाँ याद रखना, जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में है वो YY होगा या DD होगा। दोनों वाइंडिंग स्टार स्टार होंगी, दोनों वाइंडिंग डेल्टा डेल्टा होंगी। यहाँ पर भी वैसे ही रहेगा, YY या डेल्टा डेल्टा, बट ये 0 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट है, 180 डिग्री। लेकिन ग्रुप 3 और ग्रुप 4 ये स्टार स्टार डेल्टा डेल्टा नहीं होंगी। डेल्टा स्टार आर स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार या स्टार डेल्टा विल नॉट बी डेल्टा डेल्टा आर स्टार स्टार। याद रखना, ग्रुप 1 2 सेम कनेक्शन रहेंगे, स्टार स्टार डेल्टा डेल्टा लाइक दैट। और 3 और 4 में डेल्टा स्टार या स्टार डेल्टा रहेंगे। क्लियर? 0 का मतलब क्या है? 0 इंटू 30, 0 डिग्री का फेज डिफरेंस। 6 का मतलब क्या है? 180 डिग्री का, 6 इंटू 30 180 डिग्री फेज डिफरेंस। 1 का मतलब क्या है? 1 इंटू 30, 1 इंटू 30 डिग्री का फेज डिफरेंस, राइट ना? इसका मतलब ये है, याद रखना, ये प्राइमरी क्या है? डेल्टा, ऐसा। A B C, A1 B1 C1 फॉर एग्जाम्पल। क्लियर? लेकिन सेकेंडरी क्या है? स्टार। 1 का मतलब क्या है? 30 डिग्री का फेज डिफरेंस। 30 डिग्री का फेज डिफरेंस, 1 इंटू 30 मतलब 30 डिग्री। ये जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है, बी केयरफुल अबाउट इट, लो वोल्टेज वाइंडिंग है जो, वो 30 डिग्री से लैग करेगी टू द हाई वोल्टेज वाइंडिंग। लो वोल्टेज वाइंडिंग 1 into 30 means 30 degree, so low voltage winding will lag to the high voltage winding by 30 degree। लैग करेगा मतलब ये यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा, ऐसा। ये इसको रेफरेंस लेंगे ना, तो 30 डिग्री से लैग करेगा, ये यहाँ आएगा लाइक दैट। क्लियर ना? सो दिस इज A1, सो 30 डिग्री फेज डिफरेंस। क्लियर? और ये जो है ग्रुप 4, 30 डिग्री लीड। 11 क्यों बोला है? 11 इंटू 30, 11 इंटू 30 क्या होता है? 330 डिग्री। 11 इंटू 30 मतलब 330 डिग्री। 330 डिग्री से लैग करेगा, लैग करेगा मतलब वो 30 डिग्री से लीड कहलाएगा। सो लैग, ये जो 11 में यहाँ पर जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है वो लीड बाई 30 डिग्री टू द डेल्टा वाइंडिंग, या लो वोल्टेज वाइंडिंग विल लीड टू द हाई वोल्टेज वाइंडिंग बाई 30 डिग्री। 11 इंटू 30 मीन्स 330 डिग्री से लैग कर रहा है। 330 डिग्री से लैग कर रहा है मतलब ये सपोज करो यहाँ है
330 से लैग करेगा तो यहाँ आएगा ना, वो टोटल एंगल कितना होता है 360, तो यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब वो 30 डिग्री से लीड कर रहा है। क्लियर ना? सो बी केयरफुल अबाउट इट। हम इसको बोलते हैं ग्रुप 1 2 3 4। ग्रुप 1 0 6 1 11। 0 मीन्स 0 डिग्री फेज डिफरेंस, 6 मतलब 180 डिग्री फेज डिफरेंस, 1 मीन्स 30 डिग्री लैग, okay, or 30 degree lead, like that. Okay, so we'll discuss in the next. So I have discussed these things, everything in the next slide. Okay. So I want to discuss these things in the next slide. You can see here YY0, this is the group 1. Phase difference is what? 0 degree. These are the high voltage side line voltage है A2, B2, C2. High voltage side, okay, let us say A2, B2, C2. लो वोल्टेज साइड में क्या लिखेंगे? स्मॉल a2, b2, c2 एंड दोनों सेम डायग्राम में 0 डिग्री का फेज डिफरेंस। क्लियर? dd 0 का मतलब है दिस इज डेल्टा, दिस इज आल्सो डेल्टा, एंगल डिफरेंस विल बी 0 लाइक दिस। ओके ओके, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक दिस। YY6 ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 6 मतलब कितना है? 6 इंटू 30 मीन्स 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। दिस इज वाई स्टार, दिस इज लो वोल्टेज वाइंडिंग विल आल्सो बी स्टार, बट ये A2 है तो स्मॉल a2 यहाँ आएगा, लाइक 180 डिग्री का फेज डिफरेंस, लाइक दैट। ओके, आर यू गेटिंग इट? नेक्स्ट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ग्रुप नंबर 3। ग्रुप नंबर 3 इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा स्टार 1, मतलब डेल्टा, दिस इज प्राइमरी डेल्टा, हाई वोल्टेज वाइंडिंग डेल्टा, लो वोल्टेज वाइंडिंग स्टार, एंड 30 डिग्री का फेज डिफरेंस, मतलब जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है वो 30 डिग्री से लैग करेगा। ये यहाँ ना होके ऐसा है ना, ये तो वो ऐसे जाएगा 30 डिग्री, इससे लैग करेगा ये। देखो यू कैन से दिस इज 30 डिग्री का फेज डिफरेंस आ गया। दिस इज A2, दिस इज A2 30 डिग्री लैग, लाइक दैट। सो ये 30 डिग्री लैग है। ओके, और ये है फोर्थ ग्रुप DY11। 11 का मतलब 11 इंटू 30 डिग्री, 11 इंटू 30 डिग्री कितना हो जाएगा? 11 इंटू 30 330 डिग्री। सो 330 डिग्री से लैग करेगा, तो ऑब्वियसली 330 डिग्री से लैग करेगा मतलब ये लीड कर जाएगा 30 डिग्री से। ओके, और ये आपने जो घड़ी देखी है, ओके, तो ये 1 बजा, 1 बजा मतलब आपका यू कैन से हियर आपका वॉच है, ये 12 12 है, ये 1, ये 2, ये 3, लाइक दैट। क्लियर ना? तो ये यहाँ पर है तो 1, ये कितना 6 है ना, तो ये यहाँ है तो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस, इसको क्या बोलते हैं? ग्रुप नंबर 2। ग्रुप 0 में क्या होगा? दोनों यहाँ रहेंगे। ग्रुप 0 मतलब बोथ आर हियर। ग्रुप 2 मतलब क्या है? 180 डिग्री फेज डिफरेंस, 6 एंड 12। क्लियर? ग्रुप 3 में क्या होगा? ये 1, और ग्रुप 4 मतलब 11, 11 मतलब हियर 12, this is 11. So you can see through the watch also. That's why on the basis of the watch we have represented this 0 group number 1, 6 group number 2, clear? 1 group number 3 and fourth क्या group number, इसको क्या बोलते हैं? 11, clear? Group number 4. So you can see it from the watches also. So this is the concept we have. We have divided all these transformers in 4 groups. Group 1, Group 2, Group 3, Group 4. And याद रखना in all these 4 groups. So एक ट्रांसफार्मर अगर दूसरा ट्रांसफार्मर पैरेलल में लगाना है, इसका कंडीशन एक ही है, सेम ग्रुप के होने चाहिए। अगर ग्रुप अलग अलग है, they will not be connected in parallel. Okay, so that is very important condition. Now I am going to talk about
types of connection: star star, delta delta, star delta, delta star, and then V connection and Scott connection. So please be careful about star star transformer कैसा है. This is the, you can see here, this is here, you can see here, right? ये प्राइमरी है या वन वाइंडिंग लो लो लो, और दिस इज द हाई 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 स्टेप अप, या उल्टा हो सकता है, ये हाई है 3 वाइंडिंग और ये लो है. सो स्टार में कनेक्ट करना है. स्टार स्टार मतलब इसका दूसरा एंड कनेक्टेड टू न्यूट्रल, इसका सेकंड एंड कनेक्टेड टू न्यूट्रल, इसका न्यूट्रल है, और ये यू विल गेट लाइक दैट. सॉरी, you will get like this. Right? So this is the neutral point you are getting. Also be in star fashion. आप यहाँ देखें A B C N, A2 B2 C2 N. देखो ये this is connected to A1 to neutral. This is connected to B1 to neutral. This is connected to C1 to neutral. Like that also. So this is called as star connection. 3 transformers windings are there. आप चाहो तो 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर बैंक यूज करो या 3 वाइंडिंग यूज करो. इन स्टार फैशन वी कनेक्ट स्टार स्टार. क्लियर? नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस कनेक्शन. आई एम इंटरेस्टेड व्हाई डू वी यूज द स्टार स्टार कनेक्शन, कहां यूज करेंगे. क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल this connection will be used for small, that is very very important, small high voltage transformer. याद रखना, small high voltage transformer. Why do we use in a small high voltage transformer? high voltage है तो लाइन वोल्टेज कितना होगा. सपोज करो 11,000 वोल्ट, 11 kV फॉर एग्जाम्पल, 11,000 वोल्ट, 11 किलो वोल्ट फॉर एग्जाम्पल. फेज वोल्टेज कितना हो जाएगा इन केस ऑफ स्टार, 11,000 अपॉन √3. सो इफ यू यूज द ट्रांसफार्मर, जस्ट क्या होगा 11,000 डिवाइडेड बाई √3. आई एम गेटिंग 6350 वोल्ट. दिस इज द 6350 वोल्ट. अभी इंसुलेशन कितने वोल्टेज के लिए लगेगा, 11,000 के लिए कि 6350 वोल्ट के लिए. यस, इट विल रिक्वायर इंसुलेशन फॉर दिस मच ऑफ वोल्टेज, एंड इंसुलेशन की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है. क्लियर ना? तो अगर आपने इसके बदले में डेल्टा यूज किया होता तो लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज सेम होता, 11,000 वोल्ट. सो आपको क्या लगता है 11,000 वोल्ट के लिए insulation will be required right now. So this इसका advantage क्या है, we will require the insulation only for this much and cost will be reduced. Okay, so this is the लिखा है, it will be used for a small high voltage transformer. high voltage में क्या होगा, insulation required will be less. Clear? That is the purpose. Okay, the ratio of the voltage on the secondary side to the primary side is equal to the transformation ratio. Low voltage on both sides are in phase with each other. Line voltages on both sides are in phase with each other. क्यों भाई ऐसा क्यों है? अभी ये स्टार स्टार या डेल्टा स्टार स्टार है तो कौन से ग्रुप में आएगा, आइदर ग्रुप 1 और ग्रुप 2. भाई स्टार स्टार या डेल्टा डेल्टा कौन से ग्रुप में आते हैं, ग्रुप 1 में. तो फेज डिफरेंस कितना आएगा, 0 डिग्री या 180 डिग्री. It is line voltage on both sides are in phase with each other. This connection can be used only if the connected load is sorry यहाँ पर रह गया है, load is balanced. That is the problematic thing we have. अगर unbalanced load है, we can't use this type of connection. Clear? It is used only when the load is balanced. Be careful about it. That is very very important condition. Star star कहाँ use करेंगे, only for balanced load. Unbalanced load है तो क्या करेंगे, we will use for delta delta. Clear? And कहाँ use करेंगे, low volt small high voltage transformer.
It is used for small and high voltage transformer, right? So I am rubbing it. That is the star-star connection. Okay. Next is the delta-delta connection. Delta-delta connection. Delta-delta means what? कहाँ यूज करेंगे? Large and low voltage. लो वोल्टेज है, वोल्टेज स्ट्रेस का प्रॉब्लम ही नहीं है, तो कहाँ इसको कहाँ यूज करेंगे? लार्ज एंड लो. VL इक्वल टू व्हाट? V फेज. लार्ज क्यों? लार्ज में क्या हो जाएगा? IL इक्वल टू क्या होता है? √3 टाइम्स ऑफ I फेज. हैंस I फेज इक्वल टू क्या होगा? व्हाट इज I फेज? I फेज इक्वल टू क्या होगा? लाइन करंट अपॉन √3. So obviously if the phase current is less, ILY line current upon √3, अगर करंट कम है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर यूज्ड हियर विल बी, करंट अगर लाइन करंट से 1/√3 टाइम्स हो रहा है तो फेज करंट, और कंडक्टर कहाँ लगते हैं? वायर. क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर करंट कम है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी रिड्यूस. तो ये कहाँ यूज करेंगे? लार्ज एंड लो वोल्टेज. वोल्टेज का प्रॉब्लम नहीं है, वोल्टेज स्ट्रेस, राइट ना? तो दिस विल बी यूज फॉर लार्ज एंड लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर. क्लियर? इसका एक और एडवांटेज, दिस कनेक्शन कैन बी यूज्ड इवन फॉर अनबैलेंस्ड लोड. लोड बैलेंस हो या अनबैलेंस, डेल्टा डेल्टा लोड विल बी रिक्वायर्ड. चलेगा. बैलेंस लोड है तो भी चलेगा, लोड अनबैलेंस है तो भी चलेगा, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन. क्लियर? एक एडवांटेज और है, ये डेल्टा डेल्टा कैसे बनाया? देखो, ये A1 इसका एंड दूसरे के स्टार्ट से कनेक्ट होगा, B1 दूसरे का एंड तीसरे के स्टार्ट से कनेक्ट होगा, तीसरे का एंड फर्स्ट के स्टार्ट से कनेक्ट हो जाएगा. दैट इज फॉर्मिंग ए क्लोज लूप कॉल्ड एज मैश और डेल्टा. Secondary will also be in the same fashion. You can see here A1 कहाँ कनेक्ट है? B1 पे. सेकेंड का B1 कहाँ कनेक्ट है? C1 पे. C1 कहाँ कनेक्ट है इसका? A1 पे. It is forming a closed loop. Similarly, secondary side, no neutral. It is called as three-phase, three-wire system. Three-phase, three-wire, three-phase, three-wire system. No neutral is required, right? एक एडवांटेज और क्या है इसका? वो डेल्टा का, अगर एक ट्रांसफार्मर, एक वाइंडिंग खराब हो गई है किसी कारण से, सपोज इट इज नॉट वर्किंग, can we supply power with the help of two single phase transformer or two windings? Yes, it is called as open delta or VV connection. क्लियर ना? तो ऐसा भी कर सकते हैं इसको. सो क्लियर? तो आपका एक मेंटेनेंस के लिए निकालना है एक वाइंडिंग, या आपका कुछ प्रॉब्लम आ गया है, यू कैन कंटिन्यू द सप्लाई दो एट ए रिड्यूस्ड पावर लेवल. Okay, so that is called as VV connection. So this is the advantage. Another advantage of this type of connection is that even if one transformer is disabled, system can continue to operate in open delta connection but with reduced available capacity. I'll discuss this point later on. Okay, so this is the delta delta connection. कहाँ यूज करते हैं? लार्ज लो वोल्टेज के लिए. लार्ज का मतलब क्या होता है? करंट विल बी मोर, तो करंट कंडक्टर साइज कम करने के लिए वी आर यूजिंग दिस. ओके, सो आई एम रबिंग इट. द नेक्स्ट कनेक्शन आई एम गोइंग टू डिस्कस, दैट इज द, अच्छा इसका भी ग्रुप 1 या ग्रुप 2 होगा. स्टार स्टार डेल्टा डेल्टा का ग्रुप 1 या ग्रुप 2. ओके, now next I am going to discuss, sorry, star delta connection. Star delta connection. Star delta connection. Star delta यार क्या होता है? ग्रुप 3 या ग्रुप 4 में आएगा ये. ओके ओके, सो स्टार डेल्टा मतलब प्राइमरी कनेक्टेड इन स्टार फॉर्म, इट इज R, Y, B और न्यूट्रल रहेगा, और सेकेंडरी इन डेल्टा. क्लियर? ये कहाँ यूज करेंगे? दिस टाइप ऑफ कनेक्शन विल बी यूज फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. ग्रुप कौन सा आएगा? इसका ग्रुप आएगा 3 और 4. ओके ओके, प्राइमरी वाइंडिंग इज स्टार कनेक्शन कनेक्टेड एंड
with grounded neutral, and secondary winding is delta connected. This connection is mainly used for step down transformer at the substation end of the transmission line. ट्रांसमिशन से आ रही है आपका लाइन आ रही है, क्लियर, और ये सबस्टेशन है और आपको क्या करना है, स्टेप डाउन करना है, स्टेप डाउन. सो वी विल यूज दिस. क्यों ऐसा, क्या फायदा है? प्राइमरी कितना है? फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं. प्राइमरी VL ऑफ स्टार साइड, VL मतलब वोल्ट, लाइन वोल्टेज, L फॉर लाइन वोल्टेज, स्टार Y मीन्स स्टार साइड मतलब प्राइमरी साइड कितना है? सपोज करो 400 वोल्ट. क्लियर? इसका फेज वोल्टेज क्या होगा? V फेज स्टार साइड का क्या हो जाएगा फेज वोल्टेज? 400 अपॉन √3, दैट इज 230 वोल्ट हो जाएगा. फेज वोल्टेज 230 हो जाएगा इसका. ओके, सेकेंडरी साइड में कितना वोल्टेज मिलेगा आपको? फेज वोल्टेज सपोज करो नंबर ऑफ टर्न सेम है, 100 टर्न यहाँ है, 100 टर्न यहाँ है. फॉर एग्जाम्पल हम 100 टर्न चेंज नहीं कर रहे, सपोज करो 100, तो सेकेंडरी फेज वोल्टेज कितना होगा? सेम रहेगा, कितना? 230. लाइन वोल्टेज कितना होगा? सेम 230. क्यों? डेल्टा साइड सेकेंडरी साइड लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज विल बी सेम. प्राइमरी साइड का लाइन वोल्टेज कितना था? 400. सेकेंडरी साइड का लाइन वोल्टेज कितना आ गया? 230. यू हैव स्टेप डाउन विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स. अभी आप टर्न्स चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वोल्टेज विल बी स्टेप डाउन, डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन बिना चेंज करके भी आपका स्टेप डाउन हो गया. इज इट क्लियर ना? तो ये जो कनेक्शन है स्टार डेल्टा कहाँ यूज करते हैं? फॉर स्टेप डाउन द वोल्टेज. देखो आप बिना चेंज किए टर्न्स आपका स्टेप डाउन ही हो गया. Okay, this connection is mainly used in step down transformer at the substation end of the transmission line. The ratio of the secondary to primary line voltage is 1/√3 times. आपका वोल्टेज कम हो गया. देखो लाइन सेकेंडरी लाइन वोल्टेज टू द प्राइमरी लाइन वोल्टेज कितना है? 1/√3 टाइम्स. देख लो आप, यहाँ पहले 400 वोल्ट था, यहाँ कितना मिल रहा है? 230 विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, राइट? सो इट इज द एडवांटेजेस थिंग. अच्छा, यहाँ पर फेज डिफरेंस कितने का आएगा? कौन से ग्रुप में आता है? स्टार डेल्टा है, डेल्टा स्टार, ग्रुप 3 और 4. और ग्रुप 3 और 4 में फेज डिफरेंस कितना रहता है? 30 डिग्री. फेज शिफ्ट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी लाइन वोल्टेज. यू नो, यू हैव स्टडीड in phase group, right now? So please be careful about it. The fourth connection I am going to talk. That is delta star. Delta star. Clear? कौन से ग्रुप में आएगा डेल्टा स्टार? फोर्थ ग्रुप में आएगा, थर्ड ग्रुप में आएगा. फेज शिफ्ट कितने का रहेगा? 30 डिग्री का रहेगा बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी लाइन वोल्टेज. डेल्टा स्टार में क्या होगा? प्राइमरी काय में कनेक्ट रहेगी? डेल्टा फॉर्म में, राइट ना? इसका एंड, फर्स्ट का एंड सेकंड के स्टार्ट से, सेकंड का एंड थर्ड के स्टार्ट से, थर्ड का एंड फर्स्ट के स्टार्ट से. 3 फेज 3 वायर सिस्टम. बट सेकेंडरी काय में कनेक्टेड है? स्टार, सबके न्यूट्रल, कनेक्टेड टू न्यूट्रल पॉइंट. इट इज कॉल्ड एज 3 फेज 4 wire system. Okay, 3 phase 4 wire system like that. Okay, this is a connection. कहाँ यूज करते हैं? Okay, this is providing 3 phase 4 wire system. Primary in delta connection, secondary will be in star connection, right? This type of connection is mainly used in step up transformer. याद रखना है, it is used for step up. सपोज करो प्राइमरी कितना है? लाइन वोल्टेज 230. प्राइमरी साइड का फेज वोल्टेज क्या होगा? सेम 230. क्यों? प्राइमरी साइड का फेज वोल्टेज कितना हो जाएगा?
230 रहेगा, क्यों? लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज डेल्टा में सेम रहता है। ओके, सेकेंडरी साइड का फेज वोल्टेज कितना होगा? सपोज करो नंबर ऑफ टर्न सेम है, 100 टर्न प्राइमरी में, 100 टर्न सेकेंडरी में, फॉर एग्जाम्पल सेम टर्न्स आर देयर, सो सेकेंडरी साइड का फेज वोल्टेज कितना हो जाएगा? सेम टर्न्स है तो सेम 230 वोल्ट। सेकेंडरी साइड का लाइन वोल्टेज क्या होगा? सेकेंडरी क्या स्टार में, तो लाइन वोल्टेज क्या होगा? √3 टाइम्स 230 इक्वल टू 400 वोल्ट। इसका मतलब है प्राइमरी लाइन वोल्टेज 230 था, सेकेंडरी लाइन वोल्टेज 400 वोल्ट विदाउट द चेंज नंबर ऑफ टर्न्स। बिना टर्न्स चेंज करे भी स्टेप अप हो रहा है कि नहीं? तो ये कहाँ यूज करेंगे ये कनेक्शन? स्टेप अप करने के लिए। क्लियर? वी विल यूज दिस टाइप ऑफ कनेक्शन फॉर स्टेपिंग अप द वोल्टेज। कितने टाइम से स्टेप अप हो रहा है? √3 टाइम से। The secondary voltage will be step up by √3 times. Okay, and कहाँ यूज करेंगे? फॉर स्टेप अप। तो कहाँ यूज करेंगे? ट्रांसमिशन लाइन, एट द बिगिनिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। पिछले वाला कहाँ यूज किया था? एंड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। यहाँ से ट्रांसमिशन लाइन बिगिनिंग कर रहा है तो यहाँ यूज करेंगे, और ये इंक्रीज करके हम हाई वोल्टेज भेज रहे हैं। क्लियर? ओके, सो दिस इज फेज शिफ्ट कितना रहेगा? ये ग्रुप 3 या 4 में आएगा तो 30 डिग्री का फेज शिफ्ट रहेगा इन द लाइन वोल्टेज प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड, राइट? Now next connection I am going to talk, that is ओपन डेल्टा और वीवी कनेक्शन। ओपन डेल्टा और वीवी कनेक्शन का मतलब क्या है? 3 ट्रांसफार्मर है, दे आर इन डेल्टा डेल्टा फॉर्म। क्लियर? लेकिन सपोज करो कि 3 ट्रांसफार्मर हैं अपने पास, हमारा लोड कितना है? 30 kVA का लोड है। सो हमने क्या किया? 3 ट्रांसफार्मर यूज किए 10 kVA के इंटू 3, 30 kVA हमको सप्लाई मिल रही है। 30 kVA हम सप्लाई को लोड दे दिए। लेकिन अगर एक ट्रांसफार्मर फेल हो गया या एक ट्रांसफार्मर आपने निकाल लिया फॉर मेंटेनेंस पर्पज, या ऐसा भी हो सकता है कि लोड कम है तो एक ट्रांसफार्मर आप स्विच ऑफ कर दो, तो यू कैन सप्लाई पावर विद द हेल्प ऑफ 2 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स, दैट इज 1 डेल्टा, दिस इज डेल्टा का एक एक पार्ट रहेगा। क्लियर? एंड हियर आल्सो आपने तीसरा पार्ट निकाल लिया, सो डेल्टा डेल्टा के बदले में क्या हो जाएगा? ये डेल्टा था ना ऐसा, ये निकाल लिया तो क्या हो जाएगा? V, और सेकेंडरी विल आल्सो बी डेल्टा, ये निकाल लिया तो V। सो दिस कनेक्शन इज कॉल्ड एज VV कनेक्शन और ओपन डेल्टा। क्लियर? सो वी कैन सप्लाई द पावर विद द हेल्प ऑफ ओनली 2 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स, बैंक ऑफ 2 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। दिस कनेक्शन इज कॉल्ड एज ओपन डेल्टा और VV कनेक्शन। देखो आप, राइट ना? सेम कनेक्शन, ओनली एक ट्रांसफार्मर निकाल लिया आपने। Clear? So this is open delta. Open delta connection can be used when one of the transformer in delta delta bank is disabled and the service to be continue until the faulty transformer is repaired or replaced. Second, it can also be used for small 3-phase loads where installation of full 3 transformer bank is unnecessary. इसका एक एडवांटेज है, आपने एक ट्रांसफार्मर यूज किया तो निकाल लिया, तो कितने आपने 2 यूज किए ना, तो 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 20 kVA। क्लियर? बट ये जो बैंक अगर है ना, इट विल नॉट सप्लाई 20 kVA, इट विल सप्लाई ओनली 17.7 kVA। क्लियर? सो इसका मतलब है सम रिडक्शन विल बी देयर। सो टोटल लोड कैरिंग कितना आ जाएगा? 30 kVA था ना पहले, अब आपने 2 यूज किए तो 20 देना चाहिए था, बट इट इज नॉट गिविंग 20, इट इज गिविंग ओनली 17.7। सो रिडक्शन कितना हो जाएगा? रिडक्शन विल बी 30 डिवाइडेड बाई √3, इट इज अप्रोक्सीमेटली 17.7 kVA। सो 20 ना देके 17.7 दे रहा है, so this is the reduction by some 11 point something percentage.
Okay, so that is the drawback of this transformer. This total load carrying capacity of open delta connection is 57.7%. ये 30 upon √3 ये कितना आएगा 57.7% of the that would we got from delta delta connection or 86.6% of the remaining, या फिर इसका कितना आएगा 20 का कितना 0.866 approximately 17.7 kVA. सो रिडक्शन कितने से हो रहा है, इट इज टोटल जो रिडक्शन हो रहा है वो 57.7% से हो रहा है, या रिडक्शन कितने से हो रहा है, इट इज 86.6% ऑफ द रिमेनिंग कैपेसिटी. बी केयरफुल अबाउट इट. मैंने सिंपल अरेंजमेंट आपको केवीए बताया. 3 ट्रांसफार्मर 10 के हैं, सो टोटल केवीए कितना सप्लाई करने वाला था ये 30. अगर आपने एक ट्रांसफार्मर निकाल दिया तो बचे कितने 2 ट्रांसफार्मर, 2 कितने सप्लाई करने चाहिए 20 सप्लाई करने चाहिए था, बट इट विल नॉट सप्लाई 20, इट विल सप्लाई ओनली अराउंड 17.7, दैट इज 20 into what 0.866, राइट, या 30 का डिवाइडेड बाई 50√3 दैट इज 57.7 ऑफ द टोटल. तो इतना रिडक्शन हो जाता है, बट you can get the 3-phase supply, 3-phase to 3-phase at reduced power level. That connection is very important we have. Okay, I'm rubbing it, and the last connection I'm going to discuss, that is the Scott connection I'm going to discuss. So next connection I'm going to talk about Scott connection. That is called as T connection, Scott connection. So actually what is happening in the Scott connection can also be used to convert 3-phase to 2-phase or 2-phase to 3-phase. We'll discuss one full lecture on this later on, but just I'm giving the idea. Scott connection can also be used for 3-phase to 2-phase or 2-phase to 3-phase. Clear? एंड 3-phase to 3-phase तो मिल ही रहा है, बट ड्रॉबैक क्या है वीवी कनेक्शन का और ओपन डेल्टा का, वो बैलेंस के लिए यूज कर सकते हैं, अनबैलेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं. इसका एक ड्रॉबैक है स्कॉट कनेक्शन का, 2 ट्रांसफार्मर विल बी रिक्वायर्ड, बोथ शुड बी आइडेंटिकल. याद रखना इसका एक ही है, बोथ ट्रांसफार्मर शुड बी आइडेंटिकल. सो इसमें एक ट्रांसफार्मर है, ये जो है यू कैन सी हियर, दिस इज कॉल्ड एज मेन ट्रांसफार्मर and this is called as teaser transformer. एक ट्रांसफार्मर होता है मेन, जिसमें 50% tappings are provided. This is the 50% tapping on both side, on primary side and secondary side 50% tappings are there. Second transformer उसको teaser, उसको 3 tapping है, 0%, 100% and 86.6%. This is 86.6% on both side. और भी एक और लगेगा, that is 100%. So इसको बोलते हैं teaser. So it will require 2 transformer. One is called as main transformer with 50% tapping, and second called as teaser transformer with 86.6% tapping. Clear? So here it can convert 3-phase to 2-phase or 2-phase to 3-phase. So we will discuss this connection in detail in the next lecture, right? So इसका नाम है Scott connection. It is also called as Scott connection. It can be used for 3-phase to 2-phase or 2-phase to 3-phase connection. Clear? 2 transformer will be required. One is called as main transformer and other is called as teaser transformer. So I am going to discuss this in future. Okay, so I am stopping here only. Okay, thank you very much for listening me carefully. Thank you.